Anushka, please come. Amruta ji is here. Yes. I invite her also on the stage. Please. Abhishek ji. Yeah, come. They need to shut up the project. तो थोड़ा इधर Anushka, smile. Thank you very much, sir. Abhishek ji. May I now request Vinod ji and Rajkumar ji to say a few words. Anushka, sit, don't go. Sit here. You know, after hearing these poems, I try to remember what we were doing when we were 18. I think we're still struggling with our commas and dots and where to put. Our spellings were wrong most of the time at 18. You know, I had read some of these poems about 6 years back. I think we were writing Three Idiots, and I was with Abhijat in Ohio. And the way it happened was, Abhijat's house is always full of books all over the place. You have to, if you have to find a bed, you have to move some books to find a bed. So there were a lot of these papers lying over, and I just happened to pick up one piece of paper, and there was a poem on it. And I started reading it. It was a poem by Keats. Then I read another one, then I read a third one, and I said, Abhijat, look at, what great poems Keats has written. So Abhijat said, which one you liked? So I picked up one poem, I said, this one. And Abhijat said, no, this one Anushka has written. And that was, I think she was, 5-6 years back. So 12, 13? Yeah. And I couldn't believe, then I ended up reading
lots of her poems. And Anushka, you really write brilliantly. And I think it's a genetic makeup anyway. It has to come. Father writes. Shubha has written, translated some great books in Gujarati, and I still have that at home. Brother writes, Chachaji writes, Soumya has written great work, and the grandfather writes. So I don't think you have a choice. You could have become a banker. So there's no choice. We are so happy to have this book, and I can see how happy Abhijat and Shubha would be today. And I think the biggest happiness for parents today is to see their daughter up here, as Abhijat said, at the same place where Anushka Sharma read a book which she had actually not written. But here's a book which Anushka Joshi has written, and she's there. So let's end with a whistle for her. Yeah, I'll make it very short and sweet because when she, I have learned English when I was 16 years old. Now this I don't want to repeat, but my ABC came in 8th class. So when I saw her first poem, I couldn't understand it. And I had to tell her to explain to me, and I had to read it slowly and, not once but many times. And I was just completely amazed at the brilliance of what she was saying. The way she's talked about hands in that poem which I read, it just reminded me of all of us. When we are shooting a movie, we are like those hands, and now we are useless, really. And I totally identified with what she was talking about, the hands of the conductor. And also the poem when she talks about this kid who's fighting a war and the bird. I mean, it's such amazing thoughts and written with such brilliance that, I genuinely don't have words because I didn't learn the language very well. So words like brilliant, amazing, outstanding, these are regular words. I don't think they define your talent. I don't know which, maybe Kiran can help me with some words that can express how brilliant you are. So let's give her another Kiran, please. There are no words. Please just one last time. There you go. So we are all very, very proud of you, Anand. Very proud. Let me give you a hug. But let me tell you how proud I feel today. Really. Thank you. Thank you very much. On behalf of Kitab Khana and Amaya Prakashan, I would like to express our deep gratitude to Vinodji, Rajuji for making this event gracious. And all of you, some of them are really, we could not find chairs for them, so I'm sorry for that. But I hope you have enjoyed the poetry session, and I'm sure you would like to buy the book. I would like, before we end this, I would like Professor Joshi, who started it all, really to say a few words, because without him, there would be no Abhijat Joshi, there would be nobody, and there would be no Anushka Joshi, without his outstanding guidance. At the beginning, I thank Kiran for making me calm the way in which he talks. I also, when Abhijat said that my brothers will do this, I hope you are more manageable than mine. You turn out to be more manageable than my son. And what you say is so very overwhelming. And I think of all the things, of all the variety that is there. And I've never thought of words, but today I am. Because how can I talk about the brilliance of the poem, about which I can talk a lot, but they are my granddaughter's poem. It's not very proper to talk about. Yes? After all, every time I praise her, it will be reflected back to me. And the other thing is, I can't talk because you've all been so very kind to her and to us and to all of us that was to express. So, and I can't whistle, so I can't say. And we can't ask you one I can only
say. Paddy, you have to we'll end with a very Yeah, I can. Thank you. There is a whistle in one of the plays in my younger son, which ends the play, which starts the play. And today there are many whistles, and the Riverside, if the news reaches the Riverside school, that is given that whistle. I'm sure many boys will take They would be surprised if Madam Gill did not. So that is the school, and wonderful. Very good. May I call upon Abhijat ji, Madhav ji, and Shraman ji, please to come on the dance for a group photo. Shubhan ji, please. Anu ji, please. Please. बढ़िया आगे मत जाओ भैया भैया सिद्धू घूमता हाँ बढ़िया भैया बहुत भांडी है बहुत शुक्रिया आपका। लुक सामने रखिए आप। हाँ जी कहिए। शबन कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में, और आप एक खुद एक कलाकार हैं, साथ ही स्टेज और फिल्म दोनों में ही आप बहुत अच्छा कमाल करते हैं। जी जी जी, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अनुष्का के इस बुक लॉन्च पर आकर के मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है, एंड आई फील रियली रियली हैप्पी फॉर अभिजात। ही इज सच अ caring father, and to see that his beautiful daughter has turned out into such a beautiful writer, I had no idea. She's read out some parts of her poems today, and it's absolutely brilliant, and I was really touched and moved, and I feel very happy for the entire family. शमन, आप काफ़ी फेवरेट हैं, मतलब विनोद चोपड़ा जी के और सर हीरानी जी के। हाँ, आप काफ़ी प्यार दिखता है आपको क्या फिल्म में, फिर कब वापस से आपके साथ जुड़ेंगे? अब वो तो उन पे निर्भर होता है, जब भी मौका देंगे हम पहुंच जाएंगे। पीके चाइना में जा रही है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? पीके फिल्म को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारक है। एक लास्ट, थैंक यू। जस्ट सम कंपैशन फॉर द नेपाल victims. I think it's extremely sad. I happened to be in Indore at the day when I heard about this news of the earthquake in Nepal. My prayers and I wish all strength to the people who've been affected by this earthquake, and I wish a speedy recovery to all of them and to the nation, and God bless them all. गुड इवनिंग टू यू सर। गुड इवनिंग। सर बहुत ही अच्छा इंस्टेंस रहा है आपने कीट्स की पोएम का और अनुष्का का, कैसा रहा ये अनुभव और क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, जैसा मैंने कहा था कि जब हम इस उम्र के थे तो हमको तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करनी पड़ती थी। और आप देखिए किस किस्म की कविताएं लिख रही है आपने, जैसे अभी सुनी। तो ये जब आई थिंक 13 साल की थी जब मैंने इनकी पहली कविता पढ़ी थी, और वो कुछ चंद पन्नों के साथ मिक्स थी, कुछ कीट्स की पोएम थी उनके साथ मिक्स थी। तो मैं कीट्स के पोएम पढ़ रहा था और मैंने कहा यार बड़ा कमाल की कविता है। तो अभिजात ने कहा ये नहीं, ये कीट्स की नहीं है, ये अनुष्का जोशी ने लिखी है। एंड आई कुडंट बिलीव द काइंड ऑफ स्टफ शी वाज राइटिंग व्हेन शी वाज 13. So there's this book which has come out with all her poems, and I'm extremely happy that it's I'm sure a proud day for Abhijat. देखिए आपने देखा है हम कितना वक्त लगाते हैं फिल्म बनाने में। अब एक की बजाय 2 राइटर हो जाए तो शायद जल्दी जल्दी बना पाएंगे। आई एम होपिंग अभी शी राइट्स मोस्ट फ्रॉम पोएट्री शी स्टार्ट्स राइटिंग स्क्रिप्ट्स सो आई कैन मेक मोर फिल्म्स। चाइना जा रही है और अच्छी बड़ी रिलीज़ हो रही है। हम लोग सब लोग जा रहे हैं चाइना प्रमोशंस के लिए, और कुछ आई थिंक 3,500 या 4,000 थिएटरों में ऐसा मैंने सुना है कि रिलीज़ करने की बात है। तो इट्स अ बिग रिलीज़। सो 3 इडियट्स वहाँ बहुत चली थी, और तो हम उम्मीद करते हैं चलो ये भी चल जाए। कब जा रहे हैं और कौन-कौन शामिल होंगे गाने में? मैं, विनोद, आमिर, यूटीवी से कुछ लोग, और जो बेसिक टीम प्रमोशन के लिए जाती है वो सारे लोग। आई थिंक मिड मई में रिलीज़ हो रही है, तो हम लोग 10 तारीख के करीब जाएंगे। सर इसी जगह आपने शायद फिल्म का पार्ट भी शूट किया ना? हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे अगर आपको फिल्म याद हो तो फिल्म के अंत में अनुष्का एक किताब पढ़ रही है और कहती है पिकी की कहानी पढ़ रही थी, और सुशांत बैठे हुए हैं और परीक्षित जी बैठे हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे हमने वो शूट किया था। और आज मज़े की बात यह है कि अनुष्का शर्मा ने जो किताब पढ़ी थी, आज अनुष्का जोशी ने उसी जगह पे बैठ के अपनी किताब पढ़ी। अनुष्का शर्मा भी होती तो और भी अच्छा होता। अनुष्का शर्मा होती तो अच्छा होता है। आई थिंक वो है नहीं तो आने वाली थी। जब उसको बताया गया करने शी वाज सपोज्ड टू कम, बट आई थिंक फॉर व्हाटएवर रीजन शी कुडंट कम। थैंक यू सो मच, बट बिफोर यू लीव एनी कंपैशन एंड वर्ड्स फॉर द पीपल ऑफ नेपाल? Yeah, what happened in Nepal is pretty sad, and I have some friends in Nepal, and but मेरे लिए अमेजिंग बात यह है कि हमारे फिल्म शूट के कुछ दोस्त थे जो वहाँ पे रहते हैं, और हमारे बैच में थे वो। और जब हमें पता लगा कि वो वहाँ पे भूकंप आया तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। तो मुझे अभी किसी दोस्त ने बताया कि जब उन्होंने मैसेजेस भेजे वहाँ पे, और काफ़ी लोगों ने हिंदुस्तान से वहाँ नेपाल में फ़ोन किया, तो हमारा जो बैचमेट है वो एक दोस्त, वो घर के बाहर रह रहे हैं अभी वो सब, मगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इंटैक्ट था। उन्होंने कहा क्या हो गया, हिंदुस्तान से कुछ रेट सस्ते हो गए क्या फ़ोन के? सब फ़ोन कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स दे आर स्टिल फेसिंग इट विद अ स्माइल। शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर अनदर फिल्म सून। थैंक यू। सेंटर हाँ Very good evening, brother. How are you? Sorry, I didn't see you. Yeah. चारों तरफ आपकी फिल्म की तो चर्चा ही है। आज आप यहाँ पे शामिल हुए, कुछ हमें 2 शब्द कहना चाहेंगे आज के इस समारोह के बारे में? हाँ, देखिए जो कुछ भी मैंने अनुष्का जोशी के बारे में सुना था, और जो कि उनके कविता के बारे में मैंने सुनी थी, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कम है और वो जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि आज मैं बिल्कुल मैं हैरान रह गया। मुझे पता है कि कुछ लोगों के कलम में वो शक्ति होती है कि वो दुनिया को, समाज को, अपने निकट के लोगों को बदल सके, और मुझे लगता है कि अनुष्का जोशी के हाथों में, उनके कलमों में इतनी शक्ति है कि वो दुनिया बदल सकती है। 18 साल की उम्र में जो उनकी सोच है, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी जीने के बाद भी इस सोच को प्रकट करने की शक्ति कई लोगों में होगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आंखों के सामने एक जीनियस को आज पहली बार देखा हूँ। आप जब 18 साल के थे, कितनी रचनात्मक आप थे उस समय? वो क्या यार, भाई लड़कियों के पीछे भागना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना और एग्ज़ाम किसी भी तरह पास होना, ये हमारी सोच थी। बड़े बवाल टाइप के लड़के थे हम, पर एक कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि भाई हम भी इतने इम्पोर्टेंट हो जाएं, इतने महत्वपूर्ण हो जाएं कि जब भी कोई कमरे में घुसूं तो सबकी नज़र हमारी और हो। बस वही एक छोटी सी ख्वाहिश थी, बस इसके अलावा। पर यहाँ तो मुझे यकीन हो गया कि जो यंगर जनरेशन है वो जब भी मुझे लगता था कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, वो डांसिंग और सिंगिंग में अच्छा, यंग जो जितने लोग आ रहे हैं वो प्रोफेशनल्स बन रहे हैं। क्रिकेट में भी 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर आए थे,
पर पहली बार देख रहा हूँ कि कविता जैसे क्षेत्र में ऐसी कोई महान हस्ती का प्रवेश इस उम्र में। पीके को चाइना में प्रदर्शन किया जाएगा। जी। एक अच्छी बात आपके फेवरेट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि पीके की कहानी जो है यूनिवर्सल है और सिर्फ चाइना में क्यों, मुझे लगता है कि सारी दुनिया में उसे डब करके जो है लोगों को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें जो मैसेज है वो हमारे लिए इस जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तनु एक्स मनु रिटर्न्स का जो फीडबैक है बहुत अच्छा आ रहा है, लोग उत्सुकता से इसकी इंतजार कर रहे हैं। कितने उत्सुकता आपकी और बढ़ रही है इसके साथ साथ? मुझे तो अभी डर लगने लगे हैं क्योंकि मेरे पड़ोसी आके कहे थे कि माधवन जी आपकी फिल्म अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। मैंने कहा नहीं। कहते नहीं वो तो सारा जो है पब्लिसिटी बातचीत ऐसे चल रही है, अगले हफ्ते रिलीज है ना। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा रिलीज हो चुकी है। मैंने कहा नहीं भाई, अगले महीने 22 तारीख को है, मई को। तो इस जो लोग पिक्चर ज़्यादातर देखते नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मेरे नेबर्स हैं, अगर उनका इस फिल्म के बारे में इतना उत्सुकता से वो इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं वाकई में नर्वस हो गया हूँ। और मुझे लगता है कि ये अच्छी पिक्चर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है और दुआ करता हूँ कि सबके उम्मीदों पर ये खरा निकले। एक अंतिम प्रश्न, अगर कोई संवेदना अगर आप हमारे नेपाल के वासियों के लिए, जो भारत के वासी जो उससे प्रभावित हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए, अर्थक्वेक जैसी चीज़ जो है इसको हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, तो उस वजह से जो है ये अभी तक एक बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन बनकर रह गया है इन नेपाल। मुझे पता है कि वहाँ के जितने मेरे दोस्त थे जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि अगर ये कोई स्कैंडल होता, अगर ये कोई गड़बड़ी हो जाती, या कोई एक्सीडेंट होता तो इसको इतना कवरेज मिलता कि चाहे हमें न भी चाहे ना तो इतनी हमको हेल्प मिलती। पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए लोग सिर्फ इसे एक ट्रैजिक इवेंट बना के दिखा रहे हैं। हम दर्शकों को ये कहना, मैं जो है गुजारिश ये करना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा वक्त निकालिए और सोचिए कि अपने हमारे जो नेपाल के भाइयों बहनों को जो जिस चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, आपके तरफ से अगर चंद न्यूज़पेपर और कपड़े या फिर कोई अच्छे दवाई ये भी अगर आप दे पाएँ तो उनके लिए बहुत जो है सहायता उनके लिए होगा। एंड प्लीज़ डू दैट, मेक अ स्मॉल एफर्ट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू। जल्दी एक बॉक्सर के रूप में भी दिखेंगे जी। हमारे बहुत आशा है उसके लिए आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे इस साल तो मेरे 2 बड़े हस्तियों के साथ फिल्म है, एक आनंद राय साहब और एक राजू जी के साथ। तो 3 साल के बाद जो मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा धमाका क्रिएट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Convey regards to your family and your wife also. I will do that. Thank you. Thank you.